One is revision against charge and one is first bail application. In revision against charge, I am not seeking total discharge. I am only on the point that charge under section 420 of IPC and charge under 409 of IPC cannot coexist together in a single case. In my case, charge under criminal revision है bloodshed. 5100 bloodshed. For discharge from section 409, mainly I am focusing on 409. Because charge under 420 and 409 cannot coexist together in a single case. It's either a case of 420 or a case of 409. Why is it that? Because for the charge under section 420, criminal intention has to be shown from the beginning. Whereas for the charge under 406, 409, initially the interestment has to be bona fide. और अदर क्या है दूसरा फर्स्ट बेल एप्लीकेशन. तो अभी बेल नहीं मिली है. वो मेरा सिर्फ एक लिमिटेड पॉइंट है, एक ही पॉइंट पे चार्ज है. आई विल आर्ग्यू बोथ साइमल्टेनियसली. इट टेक ओनली 10 minutes लॉर्डशिप बोथ द पिटिशंस. ये आपको कहाँ से मिलता है कि 409 और 440? There is a very recent judgment. Honorable Court, Supreme Court has discussed this aspect from para 24 to 30. Very extensively it has been discussed. इसमें कंप्लेनेंट को पार्टी बनाया है क्या? बट इसमें एक FIR आईओ ने लॉन्च किया है. आईओ ने लॉन्च किया FIR. नहीं, जब But there are more than 20 है तो somebody must have. There are more than 30 to 40 complainants in this case. Yeah, what is the allegation? Lordship, the allegation is that the applicant was a employee of Paytm company and he was the head of that area. And he went to the shops of the persons living in Rajgarh and asked them to open an account and asked for loan from the Paytm account. And then he asked that that loan amount may kindly be transferred to his account. He will create an FD of that amount and from that FD amount, the interest which will be credited from the FD amount will be transferred to the loan amount. Therefore, they will not have to pay the interest amount of the loan. He paid certain installments of that interest amount which was created from that FD, and thereafter he flew away with the amount which was transferred to the applicant's account. And there is one more accused in this case, Mujib Ali. So उनके भी खाते में वो पैसा ट्रांसफर करा गया था by the present applicant. तो इस रीजन से more than 30 to 40 complainants have lodged this FIR against the present applicant and the other co-accused person. Actually सर वो पैसा जो है वो अपने अकाउंट में डलवा करके एक विन पे ऐप करके है, गेमिंग ऐप है, उसमें वो पैसा डालता था और उससे जो कभी कभार मुनाफा होता था वो उनको दे देता था. फिर उसमें नुकसान हुआ तो वो भाग गया वो पैसे लेकर के. और चार्जशीट और केस डायरी में अकाउंट स्टेटमेंट्स है wherein it has been stated that the amount has been transferred to the account of the present applicant either through the QR app or bank transfer. You are referring to which one? 24 to 30. Page number 14. Start from page number 14. ये कैसे अरेंजमेंट आपको कैसे लगेगा अभी? पहले you lured them to obtain loan from Paytm Bank, and thereafter they opened fixed deposit amount. You use the interest received from the FD for payment of loan obtained from Paytm Bank. तो दोनों चीजें तो हो गई, चीटिंग भी हो गई एंड in 27 and in 30 it has been clearly stated both of them cannot coexist together. maybe it depends on the facts and allegation. पढ़िए ना, ऐसा कौन है भाई? Lordship, I will read from 27. पढ़िए. In our view, the plain reading of the complaint fails to spell out any of the ingredient of complaint. उस complaint के facts के हिसाब से उसमें लिखा we may only say with a view to clear a serious misconception of law in mind of the police as well as courts below, that if it is a case of complainant that offence of criminal breach of trust as defined under 405 IPC punishable under 406 IPC is committed by the accused, then in same breath it cannot be said that the accused has also committed the offence of cheating as defined and explained in section 415 of IPC punishable under 420 of IPC. Similarly, the same point of law again has been explained in para 30.
the distinction between mere breach of contract and the offense of criminal breach of trust and cheating is a fine one. In case of cheating, the intention of the accused at the time of inducement should be looked into, which may be judged by a subsequent conduct, but for this subsequent conduct is not the sole test. Mere breach of contract cannot give rise to a criminal prosecution for cheating unless fraudulent or dishonest intention is shown right from beginning of the transaction. That is the time when the offense is said to have been committed. Therefore, it is this intention which is the gist of offense, whereas for criminal breach of trust, property must have been entrusted to the accused or he must have dominion over it. The property in respect of which the offense of breach of trust has been committed must be either property of some person other than the accused, or beneficial interest in the ownership of it must be of some person. Also, the offense that is the offense of breach of trust and cheating involves dishonest intention, yet they are mutually exclusive in different and basic concepts. ठीक है. और लॉर्डशिप इसके एंड लाइन में बोला है, in such a situation both the offenses cannot coexist simultaneously. एक आप किसी का स्टेटमेंट पढ़िए. लॉर्डशिप मेन पर्सन का मैं एक स्टेटमेंट पढ़ना चाहूंगा. ये है लॉर्डशिप महेंद्र सिंह राजपूत. Why I am saying that as per prosecution story there has to be intention from the beginning, because first of all जब तक लोन दिलाया तब तक तो कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ उस पॉइंट तक. तो thereafter लॉर्डशिप आई विल रीड द स्टेटमेंट. उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्रार्थी महेंद्र सिंह राजपूत पिता श्री भारत सिंह राजपूत निवासी कुकड़ी तहसील व जिला शाजापुर का निवासी हूँ. मुझे पेटीएम कंपनी से लोन लेने के लिए रोज फोन आते थे. फिर एक दिन राहुल ठाकुर पेटीएम कंपनी के टीम लीडर ने मुझसे लोन के लिए मुलाकात की, जिसके तहत राहुल ठाकुर पेटीएम टीम लीडर ने मुझे बताया कि आपको पेटीएम कंपनी की तरफ से लोन का ऑफर है और इसमें एफडी करवा लीजिए, जिसकी ब्याज दर से ही संपूर्ण लोन की राशि चुकता हो जाएगी. इस बीच मैंने पेटीएम टीम लीडर राहुल ठाकुर की बात मान ली एवं मैंने 3 लाख रुपए लोन ले लिया एवं इस लोन की राशि में से ही राहुल ठाकुर द्वारा मुझसे एक एफडी 2 लाख की करवा ली, जिसके लिए उन्होंने मुझे एक बारकोड पहुंचाया जिसमें मैंने एफडी की राशि ट्रांसफर कर दी. जिसके बाद लोन की किस्त प्रतिदिन 1262 के हिसाब से लगभग 5 दिन तक मेरे खाते से कटने लग गई. फिर कुछ दिन बाद मुझे कंपनी से फोन आया कि लोन की किस्त नहीं जमा हो रही है एवं कंपनी से मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि कंपनी का एफडी का कोई ऐसा प्लान ही नहीं है. फिर मेरे द्वारा राहुल ठाकुर को फोन लगाया गया कि मेरे पास कंपनी का फोन आया है, मेरे लोन की किस्त जमा नहीं हो रही है. मुझे राहुल ठाकुर ने कहा कि मैं मेल करता हूं, जांच करवाता हूं, परंतु कोई हल नहीं निकला. उसके बाद से राहुल ठाकुर का मुझसे कोई संपर्क नहीं हो पाया, उसका फोन बंद हो गया. फिर एक दिन मुझे वो मिल गया, मैंने उससे पूरी जानकारी ली एवं एफडी की पॉलिसी मांगी. उसने परिवार की स्थिति का बहाना बनाया कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, परंतु मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने राहुल ठाकुर से स्टाम्प पर लिखा पढ़ी करवा ली. उनसे उनके चेक भी लिए, उनसे कहा कि 20 अक्टूबर तक आपका पूरा पेमेंट कर दूंगा. अभी तक उनसे कोई संपर्क नहीं है. पॉइंट इन्होंने लोन लिया तो कोई ऑफेंस क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि पैसे उनके अकाउंट में आए हैं जिसका कंप्लेनेंट है सभी केस में, सभी कंप्लेंट में. नाउ द ऑफेंस स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. सो व्हाई देयर इज द डिसऑनेस्ट इंटेंशन फ्रॉम द बिगिनिंग एज पर प्रोसिक्यूशन स्टोरी कि एफडी की कोई स्कीम ही नहीं है पेटीएम में. एंड आई हैव मेड एज पर द प्रोसिक्यूशन स्टोरी आई हैव मेड अ स्टेटमेंट दैट आपका पैसा एफडी स्कीम में हम डिपॉजिट करवा देंगे, उससे इंटरेस्ट मिलेगा. So here is just the dishonest intention स्टाइल में है कि नहीं है, दैट इज नॉट द पॉइंट. उनका स्टेटमेंट आपने उस तरीके से डेवलपमेंट दिया ना. डिसऑनेस्ट इंटेंशन इस तरीके से आएगा कि द लोन अमाउंट was fetched by the Paytm company through the complainants for the purpose of getting that amount in his account for creating a loan and then transferring that amount as an interest. So इंसेप्शन से इंटरेस्ट ही उनका वही था.
कि इस तरीके से उसकी चेन ऑफ इवेंट्स क्रिएट करेंगे कि वो अमाउंट उनके खाते में आए और वो उसको किसी और जगह इन्वेस्ट करे और बाकी का पैसा उनको ना दें। सर, और डिसऑनेस्ट इंटेंशन इस चीज से भी आ रहा है कि अगर किसी कंप्लेनेंट ने 2 लाख रुपए का लोन लिया है, पूरा अमाउंट नहीं लिया, 1 लाख रुपए लिया या 1,80,000 रुपए लिया, वो बाकी का अमाउंट उनके खाते में छोड़ दिया, ये बताने के लिए कि आई एम नॉट टेकिंग द एंटायर अमाउंट फ्रॉम यू, फ्रॉम द कंप्लेनेंट, आई एम टेकिंग द पार्ट अमाउंट। उससे हम यहाँ पर एफडी क्रिएट करेंगे, एफडी से जो इंटरेस्ट आएगा आपका लोन भरेंगे। इंसेप्शन से उनका मोटिव तो चीटिंग ही था। सर मैं यही तो बोल रहा हूँ, मोटिव चीटिंग का अगर था इस इंसेप्शन से, स्टोरी नॉट विदाउट एडमिटिंग एनीथिंग, तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैसे बना? सर, वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इस तरीके से बना दैट ही आपके अकाउंट में पैसा चला गया ना। सर नहीं आया, मैं शो कर दूं मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, ये कहाँ बता रहे हैं? ऑफ एविडेंस, ये बैंक स्टेटमेंट है, इसमें मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं आया है। सर, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी है वो इस तरीके से क्योंकि ही पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द टीम हेड ऑफ द पेटीएम बैंक, तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो है ही ना सर। वो बता करके कि मैं पेटीएम हेड हूँ, फिर आपका पैसा लेकर अच्छा, उसमें मान लिया जाए, वो भी मान लिया जाए, मैं पेटीएम का एम्प्लॉय हूँ, पेटीएम बैंक का एम्प्लॉय हूँ, आई हैव टू बी अ बैंकर, आई हैव टू बी अ बैंकर, 409, आई एम नॉट अ एम्प्लॉय ऑफ पेटीएम बैंक, पेटीएम बैंक हैज द नेम ऑफ पेटीएम, PM is a different company operating financial services. दोनों में यही पॉइंट है ना। But in bail, I have other point as well. Bail में actually इसमें इन्होंने बताया है कि मेरे अकाउंट में पैसा आया है, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया है सर। ये स्टेटमेंट उन्होंने पूरे फीस इसमें चालान में फिल करा। 22.1 देख लें। 22.1। 22.1, यस। आपने सभी कंप्लेनेंट का ये कहना है कि हमने इसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे। ये 2 का करीब बैंक स्टेटमेंट्स हैं, 50 लाख का वो बता रहे हैं गवर्न करा है, 5 लाख भी बता मेरे अकाउंट में आया हो, तो ये आया ही नहीं है मेरे अकाउंट में सर पैसा। और वो रोहित भाव साहब जिसके स्टेटमेंट हुए, 3 विटनेसेस हैव बीन एग्जामिन्ड, रोहित भाव साहब की स्टेटमेंट हुआ, उसने तो मुझे वाली के अकाउंट में ट्रांसफर करें, तो मुझे वाली हैज बीन ग्रांटेड बेल बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट। फिर वो मुजीब अली के अकाउंट में ट्रांसफर इसलिए हुए हैं क्योंकि इनका अकाउंट में जो यूपीआई बैंक है, यूपीआई अकाउंट है, उसमें बेल एप्लीकेशन, फर्स्ट बेल एप्लीकेशन, मुझे वाली की कहाँ है बेल? लॉर्डशिप, दिस इज द बेल ऑर्डर। लॉर्डशिप रोहित भाव साहब, पीडब्ल्यू ने रोहित भाव साहब, उसने इसके अकाउंट में ट्रांसफर करा है मुझे के अकाउंट में, इसने बिजली कहाँ रोहित बाबसर का स्टेटमेंट कहाँ है? लॉर्डशिप PW1/11 एनेक्शन A2। जस्ट जस्ट ये इसमें कहा तो है, पैरा 1 में ही कहा है आपकी लॉर्डशिप, इसने स्टोरी जो बताई है, कहा है चीफ में कहा है, तो ये बोला है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, मेरे पिताजी जी ने जो मेरे को बोला मैं वो बताने आया हूँ, हियर टोटल हियर से विटनेस करिए। पूरा बोला मेरे को कुछ भी जानकारी नहीं है, मैंने उसके अकाउंट में कोई ट्रांसफर नहीं किया, जो मेरे पिताजी। 192 के बाद क्या बचता है फिर? लॉर्डशिप हियर टोटल बेल पे है अभी, आप कोई ट्रायल कौन हो रहा है? टोटल हियर से विटनेस सर, टोटल हियर से विटनेस है। उसने बोला है कि ये एंड में बोला सर, पर ये सही है कि अभी राहुल ने मुझसे कोई पैसा नहीं लिया है, ये सही है कि आनंद कॉलेज में मेरे पिताजी नहीं बैठे लिया, वो कहाँ कह रहा है? नहीं, बट तो उससे कहाँ पढ़िए पैरा 1 से वो तो यही कह ही रहा है। अभियुक्त राहुल ठाकुर जो कि पेटीएम का मैनेजर था, उसका मेरी दुकान पर आया, उसने बताया कि आपके पेटीएम पर अच्छा लोन हो जाएगा। अभियुक्त ने मुझे बताया कि इससे होगा, अच्छा फायदा होगा और लोन की तस्वीर हमने हामी भर दी। तब राहुल ठाकुर ने मेरे पिता, तो कई लाख सादा से वो अपने से कौन कह रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हियर से है, सेकंड ये कि ये नहीं एंट्री नहीं है सर बैंक स्टेटमेंट, ना तो रोहित के स्टेटमेंट में एंट्री है ये, ना मेरे स्टेटमेंट में एंट्री है सर। ये अमाउंट आया कहाँ है सर? ये मेरे स्टेटमेंट चालान का पार्ट है जो है
चालान का पार्ट है सर ये, मेरे स्टेटमेंट में नहीं आया सर ये। आपके लिए तो वो नहीं है, वो कैसा है? मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया सर। इससे ही नहीं, और भी कंप्लेंट है मेरे स्टेटमेंट सर 200 पेज के सीज करे, उसमें कहीं पे पैसा नहीं आया किसी भी अकाउंट से। टोटल कितना पैसा गया भाई? Around 51 lakh. हैं? Around 51 lakh. तेरे क्या चाहते हैं भाई? सर आया तो कुछ भी नहीं है सर मेरे अकाउंट में। नहीं सर. नहीं भाई, क्या करना क्या है? मेरिट पे करना है कि क्या? वो पिटीशन दैट रिवीजन इज देयर इज अ डायरेक्ट जजमेंट। रिवीजन में तो कोई मेरिट नहीं। यू वांट, आई विल पास तो दैट आई विल मीट अप. डायरेक्ट जजमेंट ऑफ ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट दैट सेज दैट That you have argued, I will meet out. I have expressed my view, then it is for you. So just mention whether on merit or. फर्स्ट पिटीशन आई विल विड्रॉ, सर सेकंड पिटीशन में सर मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया। और सर 1 मिनट में एक लाइन में अगर पढ़ देता, अगर इन केस अगर ये बोलते भी हैं, मैं एक चीज पढ़ना चाहता हूँ सर, ये बोलते भी कि मेरे अकाउंट में नहीं आया, पहले वाले में लिखिए पहले. विड्रॉ कर लेता हूँ। Single उत्तर. For the applicant revision, Shri Kushagra Jain, after arguing for some time, counsel for the applicant prays for withdrawal of the application. Application is dismissed, revision is dismissed as withdrawn. सेकंड में सर एक ये इसमें जो चालान इनने फाइल किया उसमें नीचे ना है, आरोपी राहुल ने उसके बैंक खाते से कई आवेदकों के पेटीएम लोन की किस्त भर रहा है तथा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के खाते से भी आवेदकों के लोन की किस्तें जमा करने के ट्रांजैक्शन उसके बैंक स्टेटमेंट में है। तो मेरे अकाउंट में आने के तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं किया, मेरे अकाउंट में आया कंप्लेनेंट, किसी भी कंप्लेनेंट है, आपने 38 का कंप्लेनेंट को बनाया है, इसमें कहाँ है पैसा सर? मेरे स्टेटमेंट में था, आप बोल रहे हैं मेरे अकाउंट में आया है, वो 11 मंथ आया मैं जेल। अभी कितने विटनेसेस हो गए? कितने? 3 विटनेस हुए हैं, 48 कोर्ट किए हैं। So there are series of statements in the charge sheet in which it is shown that the amount has been credited in his account. आया नहीं है ना Sir है स्टेटमेंट में? credit. इसमें statement है. से कहूँ, Sir है sir. स्टेटमेंट बताइए। Sir, अरे चार्जशीट फाइल होगी ना उसमें. हाँ सर, ये ना चैलेंज नहीं है सर, वही तो बोल रहा हूँ, मेरे ये पूरा बैंक स्टेटमेंट है मेरे। Shri Kunjan Mittal, for the applicant, Shri Kushagra Jain, for the state, counsel for the state submits that a huge amount of about rupees 51 lakh, around 51 lakh rupees. around about has been credited in the account of the applicant. There are, plus the counsel for the applicant dispute the same and submits that no amount has been transferred to his account. Counsel for the state is directed to specify the same on the next day and to show the statement of account list on 5th November. Sir, 5th की जगह उसको 7th या 8th कर दीजिए. 7th, 7th या 8th सर वो इतनी जल्दी आया. 7th कर दी. 6th and 7th. 7th कर. 27th. लॉर्डशिप ये वो मेंशन जो अभी अग्निवीर वाली थी, इसमें सिमिलर जजमेंट है जबलपुर बेंच का। क्या थी? सर ये जो सुबह मेंशन के लिए मैंने मेंशन मांगा था इसमें कहा कि इसको कब के लिए रखा? No, Lordship, your Lordship had directed that the case is of armed force tribunal and the writ petition has been filed. Therefore, you directed, the direction was given to verify that a petition may be